Good morning, students. Today we will learn about refraction through a glass prism. See, this is a glass prism. This is a glass prism. You can see its shape is like equilateral triangle. Okay, it's a three-dimensional object. So first of all, how do we define a prism? A prism is a homogeneous, transparent medium bound by two non-parallel surfaces. See, these are the two non-parallel surfaces. Okay, and it is the transparent also. So this angle, the angle which is formed over here, this angle is said to be the angle of prism. 60 degree, 60 degree, 60 degree. Okay, all the angles are equal. So this angle is said to be the angle of prism. Okay, so let us see. See, this is said to be a glass prism. Okay, what will happen when this angle is said to be the angle of prism? As I have said you, when a ray of light passes through a glass prism at an angle, because when the light will enter, normally we have learned that there is no refraction, so the light enters the glass prism at some angle. So what will happen? So this will, as it is passing from rarer medium to denser medium, so what will happen? It will bend towards the normal. So firstly we will draw the normal over here. This is the first normal N1. Okay, so this angle is said to be angle of incidence. So as the ray of light is passing from rarer to denser, it will bend towards the normal. Okay, and what will happen? Again, see here, this is the point P where the first time refraction has taken place. After that, what will happen? This ray of light, again it will suffer one more refraction. Okay, so again we will draw one more normal, and denser to rarer, it is away from the normal. Okay, so this thing we have learned earlier. So this angle is said to be angle of incidence, this angle is said to be the angle of emergence. Okay, and this is your second normal. Here, if there is no glass prism, then what will happen? The light ray will go straight, undeviated. बिना किसी डेविएशन के लाइट स्ट्रेट लाइन में चली जाती थी. लेकिन इस ग्लास प्रिज्म के आने से क्या होता है? लाइट दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, दो बार लाइट बेंड हुई, तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पर, दिस एंगल इज सेड टू बी द एंगल ऑफ डेविएशन. डी बोलते हैं, या बुक्स में लिखा होता है कैपिटल डी. डेविएशन मीन्स लाइट को जाना था स्ट्रेट लाइन. द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज सेड टू बी द एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, सो दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड दिस एंगल, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो दिस इज योर फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंड दिस इज योर सेकंड रिफ्रैक्शन. ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि एक ग्लास प्रिज्म में जब लाइट एंटर करती है तो वो इस तरीके का पाथ फॉलो करती है. ओके, नाउ लेट अस सी सम मोर थिंग्स. फर्स्ट वन वी विल स्टडी अबाउट द डिस्पर्शन. Dispersion of light. Dispersion of light. So what is the meaning of dispersion? Dispersion means the splitting of white light into its constituent colors. सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने ये देखा कि एक व्हाइट लाइट है, अगर उस व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. इस फिनोमिना को कहा गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट. सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया था. तो इससे ये मालूम चला कि जो व्हाइट लाइट है वो क्या है? बहुत सारे कलर्स, यानी इन 7 कलर्स का एक मिक्सचर होता है जिसको कहा जाता है, फिनोमिना को कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट. So once again I will repeat, what is dispersion? It is the phenomena of
splitting of white light into its constituent colors. Constituent colors का मतलब होता है कि जैसे VIBGYOR इन सभी कलर से मिलकर क्या बना है, व्हाइट कलर, ठीक है। आफ्टर दैट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम द बैंड ऑफ कलर्स। देखो जी, एनसीईआरटी बुक में एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ, एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है स्प्लिटिंग, VIBGYOR, ये पैटर्न फॉलो किया जाता है ऐसे, VIBGYOR ऊपर से नीचे, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ये येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर एक बैंड होता है वायलेट का, इंडिगो का, ब्लू का, ग्रीन का, ठीक है। इस तरीके से आपको पैटर्न मिलता है, तो इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। एक होता है डेफिनेशन मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट? मोनोक्रोमैटिक लाइट मीन्स, देखो मोनो मतलब सिंगल और क्रोम मतलब होता है कलर। लाइट ऑफ सिंगल कलर और लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, इट इज सेड टू बी द मोनोक्रोमैटिक लाइट। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक लाइट है रेड कलर का, तो वो मोनोक्रोमैटिक। लाइट ऑफ ब्लू कलर, तो वो मोनोक्रोमैटिक। तो एक पर्टिकुलर कलर की जो लाइट रहती है उसको कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। और दूसरी लाइट होती है एक पॉलीक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। क्या होता है? पॉलीक्रोमैटिक लाइट। जैसे सनलाइट है, सनलाइट इज कॉल्ड पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉली मीन्स मैनी, क्रोम मीन्स कलर। A light consisting of many colors, that is said to be the polychromatic light. Dispersion समझ लिया कि dispersion होता क्या है? It is the phenomena of splitting of white light into its constituent colors. लेकिन ये अलग अलग कलर्स में स्प्लिट क्यों होता है? That means we have to study the cause of dispersion. What we have to study? The cause of dispersion of light. ये dispersion क्यों होता है? ठीक है। We all know this formula. Velocity is equal to frequency multiplied by wavelength. This thing we have studied in class 9. Okay. So frequency, as the light will undergo refraction, the frequency will not change. This thing you know very well. The wavelength of red light is greater than wavelength of the violet light. ये आपको याद रखना है कि जो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। अब देखो वेवलेंथ रेड लाइट की ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी में कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ द वायलेट लाइट। कह सकते हैं क्या? यहाँ से देखो जरा, वेलोसिटी इफ फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट देन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है वायलेट से, तो रेड लाइट की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी वायलेट लाइट से। सो जब ये लाइट, जब वाइट लाइट पास करेगी प्रिज्म में, तो सभी लाइट की स्पीड क्या होगी? अलग अलग होगी। तो वाइट, तो यही होता है। सो when white light is passing through the glass prisms, different colors they undergo different extent of refraction. अलग अलग लाइट अलग अलग जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग एक्सटेंट तक रिफ्रैक्शन शो करते हैं। वायलेट की, रेड की स्पीड ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट ये सीधी चली जाती है, इसकी स्पीड कम है तो ये इसमें बेंडिंग ज़्यादा होती है, इसीलिए वायलेट नीचे आ जाता है और रेड ऊपर आ जाता है। तो रिफ्रैक्शन जो अलग अलग कलर्स, रेड ऊपर वायलेट नीचे आने का कारण ये है कि सभी कलर्स की अलग अलग स्पीड होती है, जिसके कारण से अलग अलग बेंडिंग होती है। ओके, थैंक यू।